जो हमेशा आवाज़ के साथ बिल्कुल उनको जाना जाता है, वैसे एक हरीश काकोडकर, मुंबई के एक कमेंटेटर है जयेश भोसले, बिल्कुल बेहतरीन आवाज़ के लिए। और हरीश सर, आपसे गुजारिश है, पिछले 2 दिन से आप काफ़ी इस टूर्नामेंट के साथ जुड़ चुके हैं, मेहनत आपने बहुत की है। बस आप ही के बिल्कुल जुबा पे इस टूर्नामेंट की शुरुआत हो जाए, ये मेरे लिए भी बिल्कुल अच्छा रहेगा। सर बोलिए, बिल्कुल आप ही के जुबान। हरीश काकोडकर साथ हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में। Thank you, Ashok sir, for praising me so much that I can't take it now. Thank you to especially the organizers of this Ginora Premier League for giving me the opportunity for first 3 days, Friday to Sunday, and now the grand qualifiers and then the finals. It was a wonderful experience. Two new teams added, Palpurush Blasters and Dhareshwari, and one of them, yes, we are ready. One of them is playing here in the qualifier. Qualify 1. Here we go. Ramdas to start. Abhi and Akash. Wonderful opening pair for Gurunath Young Dynamites we have seen so far. So they will be hoping to give a good start here for Gurunath Young Dynamites. One of the best bowlers that we have seen. And when I was looking at the bowl out, I didn't understand what Ramdas was doing, because generally he comes with his good run-up and tries to bowl accurately enough. But in power plays in that bowl out, he was not usual run-up, not quick. That's the reason why he didn't hit the stumps. Oh, cracking shot. Absolutely cracking shot first up. The last match of Sunday, Abhi was waiting to play a good knock, and he played against Tiskla Strikers, and he would like to continue his form in this qualifier as well. Ashok sir, what a shot. Absolutely timed it, nailed it in the covers region. Oh, wicket Q1, Ramdas strikes. Fantastic bowler, making a comeback after that scintillating boundary from the bat of Abhi. तुमको बरं आसा की जबरदस्त असो ऑरा आसा ह्या टुर्नामेंटाचो, जेनोरा प्रिमियर लीग म्हणटा ताचो, आनी प्रायजां भायर सरतात, आनी जबरदस्त मोठो असो इनाम हांगा घोशीत केल्लें आसा अशफाक डी एम बाबान. अशफाक डी एम बाबान सांगलां की कितल्योय मॅची आज जाता आनी कितलेय फाटी बॅट्समॅन 6 बॉलां 6 सिक्सरी मारता. जो 6 बॉलां 6 सिक्सरी मारतलो ताका 5,000चे कॅश इनाम अशफाक डी एम बाबान दवरलां. कितल्या फाटी मारूं, एक फाटी मारूं, 2 फाटी मारूं, आनी कितल्या मॅचीक मारूं, दिसभर हो प्रायज लागू आसतलो. नोट करात. So Ramdas once again, he's ready, and experience of Govind Prabhu. That's the reason why he has been sent after Abhi. Abhi was upset with that shot. Very good catch taken behind the wicket. Oh, this is in the air. Should be one more catch. Very bad start here for Gurunath Young Dynamite. Dhareshwari. The luck is going in their favor. We saw during the bowl out, they were the only team striking 2 times on the wickets. And now once again, 2 wickets. What a wonderful bowler this guy is. He's a striker. He makes the killer blows, and once again he's striking with the killer blows. 2 big breakthroughs. The backbone of Gurunath Young Dynamites has been shattered. And Ramdas will be on a hat-trick. DJ is on a Republic Day holiday. Okay, he's telling me that he's putting the diesel. So first you put diesel in your stomach, and then you put diesel in the generator.
So strike rotated. Akash comes on the strike for the first time, and hat-trick ball that was. Hat-trick will not be taken, but Ramdas is the one. Ashok sir has taken many wickets and crucial wickets. That's the reason, because of Pappa strongman as a batsman and Ramdas as a strike bowler. This is the reason why they are the second team. This is once again very nicely fielded, very nicely bowled in the right areas. A full length ball just wide offside off stump. This man is the key, Akash. For me, I guess the elegance and the style and the grace that he has shown his class in this tournament, he is one to watch for the future. One of the best batsmen that we have seen plays on the offside, on the leg side, very strong, and they require his services today very much. This time very nicely played, watchfully played against Ramdas, and he has got a good head as well. He knows that Ramdas is bowling well, so he's not giving him any wicket. So wonderful over. I will stay to Dhareshwari. 6 for the loss of 2 in 1. Ashok sir. हरीश सर, हेलो 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 हरीश सर, इस तरह से जो कि लीग के टूर्नामेंट जब से शुरू हुए ना, मैं कहूँगा कि युवाओं को ज़्यादा मौका मिला। नहीं तो क्या होता था सर, युवाओं को मौका कम मिलता था। लेकिन ये जिस तरह से लीग का टूर्नामेंट शुरू रहा तो काफ़ी युवा खिलाड़ी उभर कर निकले और उनका टैलेंट देखने को मिला, और आने वाले समय में वो भी बड़े बड़े टीमों में उनका भी सहभाग निश्चित रूप से रहेगा। तो युवाओं को मौका मिला इस अच्छे टूर्नामेंट के लिए। Yes, definitely, and these are the best tournaments that we have seen nowadays. Even the tournaments of ward-wise are been happening because it gives chances of the people or youngsters in the ward to come up and showcase their talent. Previously, what used to happen in open tournaments is one owner was used to make a strong team of all the good players all over Goa, and others were they were scared. They were scared to put their teams. And now it is an opportunity for everyone to showcase here the talent in each and every tournament that are being held in Goa. Dharbandhada is Uzgaon is one of the strongest zone of cricket. This is in the air and away from the fielder. We have to wait for umpire's decision. 4 runs. Akash not very well timed. It was just a flick of the wrist in the mid-wicket region, and that gives him a wonderful 4 runs that will boost his confidence. And Ashok sir, these tournaments are very crucial because I have seen in a few other tournaments that I do the commentary, youngsters don't have the confidence, but they do very well against good players, good batsmen, and that is where young upcoming talent is taken into a big games. Oh, that's a wonderful strike. Ashok sir, this guy is the future. This guy is the future of Jinora Premier League. This guy is the future of Dharbandhada Uzgaon because he's one of the best batsmen. Elegant left-hander, strong on the offside, strong on the leg side, and lots of things. With only 2 shots, 1 boundary, 1 6. Lot to worry here for the captain of the fielding side. Ashok sir, तुम्ही पण घ्या. थैंक यू सर। 16 रन स्कोरबोर्ड पर 2 विकेट के नुकसान पे। पहले भी ओवर में 2 विकेट मिले, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं ये 2 बल्लेबाज बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। बॉलिंग मार पर अगला ओवर लेकर अभिषेक गेंदबाजी करते हुए, सामने लेफ्ट हैंडर, बहुत अच्छी गेंद। इस बार जगह खड़े खड़े पर गेंद को ड्राइव करना चाहते थे, कवर पर गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं, और गेंद चली गई विकेट के पर। प्रवीण उर्फ पापा के हाथों में। हरीश, हम बात कर रहे थे युवाओं की, प्रवीण भी इसी गांव का, इसी शहर का खिलाड़ी, और आज देखो कहां पर बहुत दूर दूर के खेलता हुआ। इस बार बहुत सुंदर शॉट, गेंद लगभग बाउंड्री लाइन की तरफ निकलती हुई, फील्डर गेंद के पीछे, और तब तक गेंद निकली सीमा रेखा को पार करती हुई 4 रन के लिए। थैंक यू डीजे। और बादल, आपको भी याद होगा पिछले साल बाम्बर डे की टूर्नामेंट रही थी, और उस टूर्नामेंट में यही खिलाड़ी था जो हकदार रहा था, सबसे बेहतरीन खिलाड़ी वो यही खिलाड़ी था, प्रवीण उर्फ पापा, विकेट कीपर जो कि टीम के दिखाई देते हुए।
राउंड विकेट इस बार जोरदार अपील हाउस दैट अंपायर, लेकिन थोड़ी सी गेंद लेग स्टंप को छोड़कर निकल रही थी, इसी के कारण उस अंपील को नकारते हुए दो अंपायर मैदान पर सदगिरी नाइक और उन्हीं के साथ वामन मयकर कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ बैठ चुके हैं, जो कि शिवशरण उर्फ बाबू दाभोलकर। स्कोर वहीं पर रुका हुआ, जो कि स्कोर बोर्ड पर 20 लॉस ऑफ 2 विकेट, 20 रन 2 विकेट के नुकसान पे। Ashok sir, I think that bowler coming from round the wicket has come absolutely in front of the umpire. That is the reason why umpire could not see whether it was falling in front or going down the leg side. हाँ सर, थोड़ी परेशानी होती है। इस बार बहुत सुंदर शॉट, इस बार हल्के से लॉफ्ट किया, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर। ताकत कम थी लेकिन टाइमिंग लाजवाब था। गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए 26 पर पहुंचा टोटल स्कोर, और खेल इसी के साथ समाप्त होता हुआ 2 ओवर का खेल समाप्त, 26 रन 2 विकेट पर। Ashok sir, how skillful, how elegant that shot was. Because you must have also doing the commentary in many of the tournaments. Most of the players, especially the right-handers, left-handers, they are strong on the leg side. We have seen many sixes in the mid-wicket, long on, square leg region. But a person who is scoring in the covers and long off region is, I feel, the best batsman. And he has got the talent and he can go in the future. बिल्कुल बिल्कुल सर, जो बल्लेबाज, कोई भी बल्लेबाज हो जिसका ऑफसाइड का खेल मजबूत है, वो बहुत लंबे सालों तक क्रिकेट में देखने को मिला है। बहुत कम खिलाड़ी है जो कि ऑन साइड पर ज़्यादा, जो काफ़ी सालों से टिके, लेकिन जिसकी ऑफसाइड बिल्कुल अच्छी हो, वो काफ़ी लंबे समय तक क्रिकेट में, क्योंकि हमेशा कहते हैं कमेंटेटर, कई ज़्यादा कमेंटेटर कहते हैं कि ऑफस्टम्प बल्लेबाज को बिल्कुल मालूम होना चाहिए ऑफस्टम्प अपना कहाँ है, और उसी के साथ खेलना पड़ता है। गेंदबाजी में परिवर्तन, 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। रामदास पहले ओवर में 2 धक्के दिए सामने के, और खास करके गोविंद को चलता किया, जिस गोविंद ने पिछले साल में हरीश सर एक बहुत ही सेंचुरी बनाई थी, मुझे याद है एक टूर्नामेंट में। वो गोविंद उर्फ बाप्पा टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज, काफ़ी अनुभवी खिलाड़ी, वो बहुत जल्द वापस निकले। फील्डिंग में परिवर्तन, एक डीप लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, एक काउ कॉर्नर पर, एक डीप स्क्वायर लेग पर, एक शॉर्ट फाइन लेग, 5 ऑन साइड पर, 4 ऑफ साइड पर। नए ओवर की पहली गेंद, अच्छी गेंद, इस बार बल्ले से लगकर गेंद स्लिप की तरफ निकली, और जब तक गेंद को फील्ड करते रन की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं थी। स्कोर वहीं पर रुका हुआ 26 पर। धारेश्वरी टीम टॉस जीता फील्डिंग करती हुई, और बल्लेबाजी को मौका दिया गुरुनाथ यंग डायनेमिक्स क्रिकेट टीम को। राइट आर्म ओवर द विकेट, कमेंट्री बॉक्स एंड से अपने बॉलिंग बार पर। अच्छा शॉट ऑफ साइड पर, इस बार डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ, और कोई फील्डर नहीं मौजूद। गेंद बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन के लिए, 4 रन और मिलते हुए स्कोर के खाते में। इन 4 रन के साथ से स्कोर पहुंचा 30 रन पर, 2 विकेट के नुकसान पे। दो बल्लेबाज वापस, अभिजीत 4 पर अपने व्यक्तिगत स्कोर पर, गोविंद उर्फ बाप्पा खाता नहीं खोल पाए, लेकिन आकाश सामने से 2 चौके 2 छक्के लगाते हुए अपने इनिंग में, और उनका साथ देते हुए लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज जो कि सर्वेश नॉन स्ट्राइकर एंड पर 4 पर। अच्छी गेंद, इस बार गेंद के आने का इंतजार किया, हल्के से गेंद को खेला ऑफ साइड पर, लेकिन पॉइंट पर बहुत ही चौकरने। और हरीश सर, इस मैदान की तारीफ करनी पड़ेगी, बहुत ही अच्छा आउटफील्ड है, सुंदर आउटफील्ड है। जिस तरह से आपके गांव में सावरडे का मैदान है और एक बहुत ही अच्छा मैदान है, उसी तरह से यह मैदान, लेकिन इस आउटफील्ड पर काफ़ी ग्रास है, तो फील्डिंग के लिए बहुत अच्छी बात है दोस्तों ये मैदान पर। अच्छी गेंद, इस बार कलाई का उपयोग किया, पहला रन बड़ी तेजी के साथ, दूसरे के लिए मिड विकेट बाउंड्री से फील्डर हाना कर रहे थे, आखिरकार अपने आप को रोक लगा दी दोनों बल्लेबाजों ने, और एक ही रन बन गया स्कोर के खाते में। 31 रन 2 विकेट पर। हमारे साथ अब्दुल जो कि स्कोरिंग की जानकारी देते हुए हमारे साथ, और जो कि पिछले 2 दिन में दीपेश ने भी हरीश आपका साथ दिया कमेंट्री बॉक्स में। दीपेश, बहुत बहुत धन्यवाद। और अजय बाकर हमेशा की तरह इस टूर्नामेंट के साथ जो कि जुड़ते हुए बहुत ही अच्छे निवेदक है, अच्छे एंकर है। पूरी जानकारी जो इस टूर्नामेंट की कहाँ से शुरुआत हुई, किस तरह से जो कि कारवा सफ़र चल रहा है इस टूर्नामेंट का, ये पूरी जानकारी हमेशा इस मैदान पर देते हैं। अगली गेंद इसी बीच राइट आर्म ओवर द विकेट, सुंदर शॉट, इस बार गैप में गेंद, पहला निकलना चाहते थे कैच के लिए, लेकिन जैसे देखा गेंद काफ़ी दूर है, सही सोच, डीप एक्स्ट्रा कवर पर गेंद को उठाते फील्ड करते, 1 रन पूरा किया। इसी बीच में दोनों बल्लेबाजों ने स्कोर 32 रन पर पहुंचा। 7 ओवर का मैच का ओवर चलता हुआ तीसरा, और इसके बाद 4 ओवर का खेल जो अभी भी बाकी। ऑफ साइड पर एक स्लिप, एक कवर पॉइंट, एक मिड अप,
इस बार बड़ा शॉट खींचकर खेला डीप लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पर, एक गजब का छक्का। थैंक यू डीजे। 3 ओवर का खेल समाप्त है। एक बार फिर से जुड़ जाते हैं हरीश सर के साथ। हरीश सर, हम दूसरी इनिंग के लिए बादल को मौका देंगे पूरी, क्योंकि आपके और हमारी कमेंट्री बिल्कुल, मैं तो कहूँगा लोगों को जुबानी बच चुकी है कई सालों से। तो कुछ लोग भी हमेशा नया सुनना चाहते हैं, और मालवनी कमेंट्री बिल्कुल दोस्तों आपके लिए है आज। इस कमेंट्री बॉक्स में ज़रूर पूरी दूसरी इनिंग में आपके साथ जुड़ जाएंगे बादल चौधरी हमारे साथ। लेकिन उससे पहले 3 ओवर का खेल, चौथे ओवर की शुरुआत, और कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर से हमारे साथ हरीश काकोड़कर। 3 overs, 38 runs. 2 wickets have gone, but the danger man and the best man that has to be on the crease, Akash, is still there. And that's a big sign to worry here for the captain of the fielding side, Sanket. Because if considering 7 overs, if you get around close to somewhere 90, 95 runs, that is going to be a good total. You never know, sometimes while chasing, everyone wins the toss, elects to field first. But every day is not a Sunday, although today is a Sunday. But hoping that we get a wonderful match, more than 19 runs and being chased, or goes to the last over, last ball. Short ball pulled away, but he didn't get that power, so we'll get only a single. So one of the best batsmen that we have seen up for the future for this Dharbandura Uzgaon Panchayats that are playing many tournaments. Uzgaon and Dharbandura has become a very, very strong zone of cricket nowadays, because so many tournaments. I was doing the commentary in TPL, lots of players over there. Then there was Uzgaon Premier League, then here at Jinora, and few more tournaments are still to be organized at Uzgaon and Dharbandura region. So very, very strong organizational in terms of cricket. They love the cricket over here game and organize many tournaments so that upcoming new talents are given a platform to showcase their talent. Outside edge, straight to the short third man region. Abhishek, the bowler, he has been picked up for as an all-round performance here, but so far he has done a good job, decent enough job with the ball. In fact, all the bowlers of Dhareshwari Empowered have done a fair enough job in this tournament. Just wide outside off stump. Batsman asking that it should be wide. All the batsmen think that if it is not hitting their bat, it's a wide. And all the bowlers think that whatever hits their pads of the batsman, it is out. That's how it is. Oh, that's a very nice shot up and over the fine leg region. Short ball, and he was up to the task. Sarvesh, a wonderful bowler and a wonderful batsman as well. We have seen here the capability to hit those big sixes, boundaries, and that's the reason why he's accompanying Akash over here at number 2 down position. 1 per the over signaled by umpire. Vaman Mayekar, very experienced, popular umpires in terms of laws of cricket. He knows everything, along with Sadgiri Naik. Oh, that's a good shot, but it's in the air. Should be taken. Didn't time it well, and the 3rd wicket down here. Sarvesh Paris is in the midst of scoring quick runs. Akash still there.
Meanwhile, Akash is playing beautifully on 23, still there on the wicket. Score is 43. The team total, 3 wickets down. So 3 more overs to be bowled after this. And Ashok sir, so far we have seen in this tournament, just a moment of 1 over, everything changes. If 3 wickets in 1 over, it goes in the bowling side. Suddenly, a over of 25 runs, the score moves up quickly and fast. And you see what could have been 70, it goes to 90. So it changes within the complexion of 1 over. And what is good here for Guru Nath Young Dynamites is Akash still there. He's batting wonderfully, timing the ball well, hitting those boundaries as sixes, and finding the gaps. Oh, he wanted to put that uppercut for 4 runs. And his strong zone over there. And whenever a batsman is very strong on the offside and leg side as well, it is difficult for the bowlers where to bowl. Because if you bowl outside of stump, he will cut you or drive it in the covers region. If you bowl short on his legs, he will pull it away or play the big shot in the mid wicket or long leg region. And the short ball. That's the reason why I told that he's a very, very difficult batsman to bowl to. Akash asking that 1 per over was there, but it was well within the reach, well within the zone of the batsman. So that's a good ball to finish the over number 4 for Guru Nath Young Dynamites. Score is 48 for the loss of 3 in 4. So Ajit Shivcharan will be the bowler, bowling from the commentary box end. Wonderful sound system here from Nandan as well. We are getting a good feel to even give the commentary live on YouTube. That is Goa Livecast, Nikhil Dangi, Tushar and their teammates, live scorers. Wonderful feel here on the ground of this tournament. With me, Badal Chaudhary and Ashok Naik in the commentary box, giving you the live updates. Badal will come shortly with his Malwani commentary. It's a wonderful, wonderful language, Malwani, just like how I love Kokani. Many people here love Malwani. And to tell Ashok sir and Badal that it's a wide ball. Today is the Republic Day, 72nd Republic Day, and India is a country where it is form of different caste, creed, religion, different languages, and cricket is the common religion that binds everyone together. So what can be a great thing then we are playing such a wonderful tournament? A cricketing festival we call good fielding on the 72nd Republic Day. And best thing to add up to that is we are getting 4 languages in the commentary box. One is Konkani, one is Malwani, one is Hindi and one is English. हरीश सर, आज अजय के भाई होने चाहिए थे, प्रकाश बागकर, विजय बागकर, क्या बिल्कुल कोंकणी कमेंट्री करते थे हमारे साथ, वो भी जुड़ते थे इस, और बहुत सुंदर जो कि कोंकणी कमेंट्री करते थे. Good shot, very good shot. A short ball asking to be hit. There was no man patrolling that extra cover region. So with that boundary, score moves on to 53. Next inning speaker वासा बाहेर घालतला. Next inning start जाता. Humming जाता, लागी जाता. Combination of cricket, different languages, wonderful ground. Great, wonderful shot down the ground. Is it going for 4 runs? No fielder is there, so it will be only single. Isn't it, Ashok sir? A great combination of cricket, 72nd Republic Day, lots of crowd, wonderful ground, good cricket, good teams, everything happening, and we are enjoying in the commentary box.
each and every day we do different sort of commentaries, excitement from all the players, batsmen, and we try to express it in our words. And that is what people like. People like to hear many different commentators across Goa and outside Goa. Once again, was it an age? Don't think the reaction from behind the wicket, but there was no reaction from Papa at all. So far so good from Ajit. Akash still there. So one player has been kept for him in the covers region because he's strong over there, but no one patrolling the long off boundary. So where he's going to his boundary or a six. Oh, that's a good ball here. They are going for the single. Akash chance for run out at the far end. Oh, that was very close. They missed an opportunity of a run out. Wonderful bowling here from Ajit. That's the reason why Akash is under pressure. Batting power play has been taken, but it's not going in the side of batting side. Let's see. Still balls remaining in this over. Akash trying to do something extra that he normally doesn't do. Has he hurt himself? Looks like it has hit the top of his, close to the nose or maybe under the eyes. Papa is asking. That's a good spirit of the game shown from Papa. He's Papa of all the players around here because he has played lots of matches, lots of tournaments, lots of prizes, and he's asking Akash, I hope you are okay, so play good game. Once again trying to hoik in the mid-wicket region. So far this has been a good over here from Ajit. Youngster doing very fine job. That will complete the over number 5. Score is 55 for the loss of 3. $55 for the loss of 3. Ashok sir, you can continue. And what I like about you, sir, is I also learn a lot of things from you because you are like a free-flowing river, which is very calm, cool. And whenever you want to hear some voice, which is very calm, cool, because it is not like always you want to hear those big noises, loud voices to hear in the commentary box or on the YouTube. Sometimes you want to see very cool, calming effect, just like how the river does its job and goes towards the sea. थैंक यू सर 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ. गेंदबाजी में परिवर्तन. दीपेश अपने बॉलिंग मार्ग पर 55 रन. फुलटॉस गेंद इस बार आड़े बल्ले से खेला गेंद को ऑन साइड पर और इस बार बिल्कुल गेंद सामने बाउंस के साथ ऊपर से निकलते हुए फील्डर के बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन के लिए. चार रन के साथ से स्कोर पहुंचा 59 रन पर 3 विकेट के नुकसान पर. 59 लॉस ऑफ 3 विकेट. और फिर से खराब गेंद. नो बॉल का इशारा. बीमर गेंद हवा में, लेकिन नो बॉल के साथ दूसरे रन के लिए निकले दोनों बल्लेबाज अपने अपने क्रीज में. तो मिलेंगे टोटल 3 रन नो बॉल के साथ और एक रन जो कि बढ़ता हुआ स्कोर के खाते में. अंपायर का इशारा नो बॉल का और टोटल मिले 3 रन स्कोर के खाते में. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 62 रन पर फ्री हिट का मौका रहेगा बल्लेबाज के लिए और एक बड़े शॉट के लिए. बहुत ही शानदार इनिंग एक ओवर से जो कि आकाश साथ दिया था. बीच में जो कि सर्वेश ने 15 रन बनाए, 2 चौके 1 छक्के लगाए, आउट होकर वापस निकले. जो तीसरा विकेट, पहला विकेट 5 पर, दूसरा 5 पर, तीसरे विकेट के बीच में एक बड़ी साझेदारी बनी 38 रन की. 43 रन पर तीसरा विकेट और वहीं से लेकर छोटी सी और साझेदारी बनती हुई स्कोर बोर्ड पर 62 रन 3 विकेट पर 7 ओवर का मुकाबला मैदान पर. फ्री हिट की गेंद लेकिन फायदा नहीं उठा पाए. बहुत अच्छी गेंद, टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीची रही. ऑफ ब्रेक गेंद थी, बल्ला जरूर घुमाया लेकिन गेंद बल्ले से नीचे से निकलते हुए विकेट कीपर प्रवीण के हाथों में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से.
ओवर छठा मैच का चलता हुआ 7 ओवर यानी इस ओवर के बाद 1 ओवर का खेल जो अभी भी बाकी। राइट आर्म राउंड विकेट अपने बॉलिंग मार पर दीपेश। ओवर पिच गेंद खड़े खड़े मारना चाहते थे, रन के लिए निकले दोनों बल्लेबाज। बैकअप बहुत दूर है, देखना होगा। 1 रन, दूसरा रन इसे बीच में, और फिर से थोड़ा सा विकेट कीपर प्रवीण फिसले, और जब तक गेंद को फील्ड होती गेंद 2 रन बनते हुए स्कोर के खाते में। 2 रन मिले स्कोर के खाते में। 2 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 64 पर पहुंचा। अंपायर का कोई इशारा नहीं, यानी बल्ले से लगकर गेंद निकली थी जो कि, और 2 रन के साथ से 64 पर पहुंचा 3 विकेट पर टोटल स्कोर। बहुत ही अच्छा विकेट, काफ़ी मेहनत पिच क्यूरेटर ने इस विकेट के साथ। आउटफील्ड अच्छा है, 7 ओवर का मैच है, एक 85-90 का टोटल, अच्छा टोटल रहेगा इस मैच में। लेकिन देखना होगा कब तक कहां पर जो कि पहुंचती है गुरुनाथ यंग डायनामिट्स क्रिकेट टीम। दारेश्वरी क्रिकेट टीम टॉस जीता, फील्डिंग करते हुए मैदान पर बल्लेबाजी कर रही है। गुरुनाथ यंग डायनामिट आज का आखिरी पड़ाव। और हरीश सर, आपको भी धन्यवाद देने पड़ेंगे, पिछले 2 दिन से पूरे दिन में कॉमेंट्री आप कर रहे हैं। सर, बात आसान नहीं है पूरे दिन में जो कि कमेंट्री करना। दीपेश ने साथ दिया होगा, लेकिन मेरे ख्याल से दीपेश ने थोड़ा सा आपका साथ दिया होगा। नहीं, दीपेश ने साथ दिया है, लेकिन सबसे बड़ा साथ अजय बाकर सर ने दिया है। अगर न वो नहीं होते तो मेरे को नहीं लगता कि आज मैं फाइनल में कमेंट्री कर पाता। हाँ बिल्कुल सर, क्योंकि अजय बाकर तो हमने पहले चर्चा की है उनके साथ, जब पहली बार इस टूर्नामेंट में आए जय भोसले ने मौका दिया, और जय भोसले के साथ बाबू का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और तब से अजय के साथ जो कि दोस्ती हो चुकी है। खेल इससे बीच में थोड़ी देर के लिए रुका हुआ। बहुत ही सुंदर आयोजन इस टूर्नामेंट का, जिनोरा प्रीमियर लीग। पिछले साल की तरह इस मैदान पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं अब्दुल, स्कोरिंग की जानकारी। और यूट्यूब पर हमारे साथ जो कि निखिल डांगे की जो कि ये पूरा जो कि कारोबार है, बहुत ही अच्छा जो कि गोवा लाइव टेलीकास्ट आप हमेशा देखते हैं इस जो कि यूट्यूब पर। और कई सर, हरीश सर, मैं तो कहूँगा यूट्यूब जब से शुरू होगा कमेंटेटर भी काफ़ी मशहूर हो गए, उनका भी नाम हो गया। क्योंकि कई आजकल लोग जो दर्शक देखते हैं यूट्यूब पर, बस देख के जान जाते हैं, हाँ ये भाई बादल चौधरी बोल रहा है, ये हरीश काकोडकर बोल रहे हैं, ये अशोक नाइक बोल रहा है। ऐसे हाल ही में वालपाई में टूर्नामेंट रहा था, और इन साहब ने पूरा मैच को देखा था। जब मैच देखा तो मुझे फ़ोन किया, अरे हाँ अशोक नाइक तुम वालपाई में हो? हाँ भाई मैं वालपाई में हूँ। तो ये आवाज़ परिचित हो चुकी है। पिछले 2 दिन के साथ आज का आखिरी दिन इस टूर्नामेंट का। शानदार ट्रॉफीज रखी है, पिछले साल भी जो कि इस टूर्नामेंट के साथ ट्रॉफी और बिल्कुल पिछले साल का जो हीरो था हरीश सर, इस साल टीम बाहर हो चुकी है, लेकिन गाड़ी का हकदार रहे थे। और बादल, एक प्रीमियर लीग में गाड़ी रखी है, क्या क्रिकेट है, क्या दोस्तों क्रिकेट है, क्या जमाना रहा हरीश सर। साइकिल का दिन था वो, साइकिल हमारे किशोर भगत को एक बार जो कि विजय क्रिकेट टीम तारा मुंबई में साइकिल मिली थी, वो दिन थे। आज आकाश तारेकर आकाश तारेकर बाइकमैन कहते हैं जिसे। और गोवा के कई खिलाड़ियों को जो वो भी हकदार रहे हैं जो कि गाड़ी के। पिछले साल आनंद पाटिल, लेकिन बहुत अच्छे खिलाड़ी आनंद पाटिल। उसके बाद कई मुकाबले में सामने देखने को मिला, बहुत अच्छा क्रिकेट जो कि। पीछे थोड़ा सा वक्त सर मिल चुका है, जुड़ जाएंगे हरीश सर आपके साथ
बिल्कुल मैच शुरू हो रहा है, लेकिन बीच में ज़रूर हम आपसे पूछेंगे मोहम्मद अजहरुद्दीन के साथ आपकी बातचीत, आपकी मुलाकात किस तरह से हो रही, ये सब जो कि सुहाना पल था आपके लिए, क्योंकि कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो बादल जीपीए में उन्होंने कमेंट्री किया है और वो खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट भी खेले हैं, रणजी क्रिकेट खेले हैं, तो ये बिल्कुल बड़प्पन है हरीश काकोडकर आपका। I have played in A divisions of GCA, but it's not a factor. What I liked about Mohammad Azharuddin was he was still grounded. He asked about how the cricket is played, and he had wonderful memories. And one point he told me that whenever I played 3 or 4 Ranji matches in Goa, and these Goa people were very smart. They used to call me on 26th of December, 27th of December. The matches were there, and they thought maybe I was coming. We are coming from Hyderabad. Oh, that's a good shot. Should go for a 6 runs. Finally, something to cheer here for Akash after a long time. Gurunath Young Dynamites are happy with that wonderful 6. The score moves on to 70. And he was telling that Goans were very smart. He used to call us at the end of the New Year celebration so that we will do the party and we will not perform in the matches. But we were even smarter than Goans. We never went for the party. And we performed and beat the Goa team. So he had some wonderful memories to tell. अरे बरं, या बाई. कटाळा वाटला. Oh, this should be in the air. This should be taken. Finally, Akash, after a good knock, perishes. Very nicely bowled, in fact, according to the fielder taking a good catch. And Ashok sir, what he told me was, and I was very close to him, asking him about different scenarios. He told me that he got one double hundred in Goa in Panjim Gymkhana and 100 international against Australia or Sri Lanka something at Fatoda Stadium. And one thing I want to tell about the wrist of that batsman, Mohammad Azharuddin, very, very strong wrists, very, very strong hands. We see on television that these players, Lakshman, Mohammad Azharuddin, doing the flick of the wrist for strong players, strong fast bowlers. But they are very, very strong. They practice it day in, day out, same shots. And that's the reason why they come true on the ground. हाँ सर, बिल्कुल। मैंने भी कई बल्लेबाज देखे हैं, लेकिन 2 बल्लेबाजों की हम हमेशा याद प्रशंसा करता हूँ, मोहम्मद अजहरुद्दीन और वीवीएस लक्ष्मण। ऑफ स्टंप की गेंद को भी लेफ्ट साइड पर वो मारते थे, तेज गेंदबाजों को। बहुत ही अच्छा क्रिकेट, नए बल्लेबाज मैदान पर। इस बार खेला गेंद को, शफल होकर ऑन साइड पर, मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर 1 रन के लिए निकले, दोनों बल्लेबाज दूसरे के लिए निकले, विकेट कीपर के हाथों में थ्रो, और तब तक हाना के शायद इसी बीच में और एक विकेट, और विकेट नंबर जो कि 5वां वापस निकलता हुआ। एक अनाउन्समेंट आसा, एक अनाउन्समेंट सगळ्यांनी मातशी नोंद करात. बंटी म्हणटा तो आसा, ताजी गोल्ड चेन गळ्यांतली ग्राउंडार पडिल्ली आसा, गोल्ड चेन. सो तुमकां जर तर प्लेयर्स, ओनर्स नाल्यार कोण स्पेक्टेटर्स कोणाक मेळटा जाल्यार मातशी कॉमेंट्री बॉक्सान हाडून दियात. ग्राउंडार खंय स्पेक्टेटरां मदीं नाल्यार ग्राउंडार प्लेयर्सांक मेळटा चुकून जाल्यार ताणें मातशें हाडून कॉमेंट्री बॉक्साक दिवची. थैंक यू। स्कोर हो चुका है टोटल 71, 71 रन। आधी टीम वापस हो चुकी है। गुरुनाथ यंग डायनामिट्स क्रिकेट टीम की 71 रन, 5 विकेट पर बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। आकाश 44 रन बनाए, आकाश ने 4 चौके 3 छक्के लगाए, और एक नए बल्लेबाज जो कि मैदान पर। अड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, बोल्ड हुए उस गेंद पर, और एक विकेट इसी के साथ वापस निकलता हुआ, 6ठे विकेट का पतन होता हुआ गुरुनाथ यंग डायनामिट्स क्रिकेट टीम को लगता हुआ, और एक धक्का, स्कोर वहीं पर रुका हुआ, 71 रन 6 विकेट पर, और रमेश बिना खाता खोले 0 पर वापस। एकमात्र बल्लेबाज 44 रन जो कि आकाश, और आउट होकर वापस उमेश, आउट होकर वापस जो कि 6ठे विकेट के रूप में।
बॉलिंग मार्ग पर सामने से कमेंट्री बॉक्स एंड से दिखाई देते हुए संजीव गेंदबाजी करने के लिए, और नए बल्लेबाज आ चुके हैं मैदान पर जो उत्तम। स्कोर 71। एक बार लग रहा था 90 के आसपास पहुंचेगी, लेकिन वहीं से थोड़ा सा रोक लगा दी गेंदबाजी ने। बहुत शानदार कमबैक मैदान पर दिखाई देता हुआ। कई दर्शक YouTube पर जुड़ चुके हैं, मैच का आनंद ले रहे हैं। उसी में से और एक हमारे बिल्कुल जो कि बेहतरीन स्कोरर है, सांगे प्रीमियर लीग में पिछले कई सालों से जो आपका अपना योगदान दे रहे हैं, विराज तेंदुलकर मैच को देख रहे हैं। विराज तेंदुलकर ने ढेर सारी शुभकामनाएं भेजी। बहुत ही अच्छा YouTube पर प्रसारण हो रहा है, बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट। विराज, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर पिच गेंद इस बार लॉफ्ट किया खूबसूरती के साथ, डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, और सामने गेंद हाथों में कैच को पकड़ा। बहुत ही सुंदर फील्डिंग, रामदास लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, और एक विकेट इसी के साथ वापस निकलता हुआ। योगेश आउट होकर वापस, लगातार जो कि स्कोर वहीं पर रुका हुआ, 71 रन 7 विकेट के नुकसान पे। थैंक यू डीजे हरीश सर। क्या वो दिन गुजरे बीच में, 22 मार्च से लेकर क्या दिन गुजरे कोरोना के साथ। लोगों ने अपने थे साथ साथ वो दूर हो गए, अपने थे वो पराये हो गए। क्या सफर रहा दोस्तों कोरोना का, लेकिन जिंदगी समझ में आई कि क्या जिंदगी है। हर आदमी को वो बिल्कुल समझ में आई। नए बल्लेबाज मैदान पर, और शॉर्ट आर्म पुल का शॉट बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब टाइमिंग, लॉन्ग ऑन के ऊपर से फील्डर के गेंद सीमा रेखा से बाहर। बड़ी देर के बाद एक शानदार शॉट 6 रन के लिए। लगातार 3 विकेट खोए थे गुरुनाथ यंग डायनामिट क्रिकेट टीम ने, एक ही स्कोर पर 71 पर, लेकिन बड़ी देर के बाद एक बड़ा शॉट 77 रन 7 विकेट पर स्कोरबोर्ड पर। आखिरी ओवर चलता हुआ, इस बार गेंद हवा में, बैकफुट पर जाकर खेला गेंद को, लेकिन सीधा दीपेश के हाथों में लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, कमेंट्री बॉक्स के सामने उस कैच को पकड़ते हुए, और विकेट नंबर 8वां वापस निकलता हुआ। अरे वाह रामदास, आपके लिए बहुत ही खुशखबर। 500 रुपए का इनाम आपके लिए उस कैच के लिए, शैलेश उर्फ पंते जिनके ओर से। ओ खेलना चाहते थे अक्रॉस द लाइन, इस बार पूरी तरह से चकमा खाए गए उस गेंद पर, और जो बड़ी अच्छी शुरुआत थी 71 रन पर, जो कि स्कोर बोर्ड पर विकेट थे 5 रन, लेकिन वही से लेकर 8 विकेट 77 रन पर, ये जो कि स्थिति गुरुनाथ यंग डायनामिट्स क्रिकेट टीम की। हरीश सर, क्या स्थिति थी? मजबूत लग रहा था 90 के आसपास आर पार हो जाएंगे, लेकिन बहुत ही शानदार गेंदबाजी हुई बीच में, और कहीं ना कहीं मैं कहूँगा हाराकिरी की सर इस मैच में बल्लेबाजों ने। Yes, definitely harakiri was there, but I'll tell you one thing about this bowling attack. There are no strong big bowlers apart from Ramdas, who is one of the strongest in this tournament. And he bowled 2 overs very well most of the matches. But all the bowlers throughout the tournament have bowled fantastically. They have done a decent job. They have bowled according to the field. This is exactly what I mentioned. They don't have that much of pace, but what they have done is the basics of cricket as a bowler. Good line, good length, yorkers, change of pace, and that's the reason why this team is doing very well. And after completion of 7 overs, Gurunath Young Dynamites have scored 78 runs and 79.
79 is what is required. तो पहले 7 ओवर का खेल और गुरुनाथ यंग डायनेमिक्स बल्लेबाजी करते हुए टोटल 44 रन, शानदार बल्लेबाजी आकाश की, और आकाश का अच्छा साथ दिया 15 रन बनाकर। सर्वेश ने ये 2 बल्लेबाजों की अगर बात छोड़ी तो बाकी के बल्लेबाजों ने काफी निराश किया। रामदास बहुत ही अच्छी गेंद, 2 ओवर कोई मेडन नहीं, 18 रन 2 विकेट। और संजीवा आखिरी ओवर में संजीवा ने 3 विकेट चटकाए जो आखिरी ओवर में। तो टोटल स्कोर बोर्ड पर तो टोटल 77 स्कोर, और मैच को जीतने के लिए चाहिए 78 रन। और हरीश सर आपके साथ अब मात्र जुड़ जाएंगे हमारे बादल चौधरी, जो इस पहली बार इस टूर्नामेंट में जिनोरा प्रीमियर लीग। आइए बादल, आपका बहुत बहुत स्वागत। हॅलो, बादल कॉमेंट्री सांगच्या पयलीं हरीश आनी अशोक हांकां एक सांगूं सोदता। पयर आयतारा मालकांची मॅच आसली सांजच्या वेळार, ब्युटिफूल मॅच जाली, सगळे बरे खेळिल्ले। लास्ट बॉलाक 2 जे आसले आनी मिलिंद प्रभूचो कोंकण उल्साचो मालक आसा तेणी शॉट घेतलो आनी 2 रन कंप्लीट जाल्लेत। पूण नॉन स्ट्रायकरार आसलो उगम म्हणून एक जो बरो फामाद उगम, तो 3ऱ्या रनाक धांवलो आनी तो धांवता म्हणून मिलिंद धांवता, पूण ऑलरेडी जिखलेले। पूण मिलिंदाक विचारलें तूं कित्याक 3ऱ्या रनाक धांवलो, तो म्हणटा उगम धांवता म्हणून आपूण धांवलो, रनआवट जालो जाल्यार। सो हे अशे वेगवेगळे रिकॉर्ड घडलेले आसा हांगा। सो उगम एक बरो क्रिकेटर हांगा आमच्या मदीं आसा। आनी चिकू म्हणून आमचो एक को ओनर, हां, तोय बी बरो फामाद जाला। सो अश्यो जायत्यो मेमोरेबल घटना ह्या GPL 3 घडलेल्यो आसा। सो फुडल्या येता वेल नोन मालवणी कॉमेंटेटर आमच्या मदीं आसा बादल चौधरी आनी बादलाचेर वचो नाका, ओरिजिनल मालवणीच जावन आसा। सो बादल थोडेसं इथं मिसअंडरस्टँडींग आहे की बादल आणि चौधरी आणि मालवणी। सो हे तुम्हीच सांगा तुमच्या तोंडात ह्या काय आसा आता। हॅलो चेक हॅलो चेक हॅलो चेक हॅलो गेन हॅलो मालवणी आकाशवाणीच्या धारबंदरा केंद्रावरसून सगळ्यांचा हात जोडून स्वागत। जिनोरा प्रीमियर लीग पर्व 3 शेवटच्या दिवसातलो पहिलो सामनो। 79 रन्साचा टार्गेट, सलामीची जोडी मैदानात, प्रवीण स्ट्रायकर यांच्या दिशेन, शिवम नॉन स्ट्रायकर यांच्या दिशेन। सर्वेश बॉलिंग मार्क पर,
फुलटॉस चेंडू, स्वीपचा फटको, डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेने, पहिल्या चेंडूवर आखांड्याच्या दिशेने चौकार आणि पहिल्या चेंडूवर प्रवीणच्या खात्याची बोनी आणि टार्गेट चेस करणाऱ्या धारेश्वरी एम्पॉवर्ड संघाची सुद्धा बोनी. फुलटॉस चेंडू कव्हरच्या दिशेने, पॉइंट आणि एक्स्ट्रा कव्हर, दोन खेळाडूच्या मसून परत एकदा चेंडू चौकारासाठी, दुसरा चौकार प्रवीणच्या बॅटमधून. दोन चेंडूच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 8 रन्सावर. पॉवर प्लेच्या दोनही पहिल्या षटकात मोठी धावसंख्या उभारण्याचो मानस प्रवीण आणि शिवम ह्या जोडीचो. 19 धावांचा टार्गेट, फक्त 7 षटकांचो खेळ तुमच्यासाठी आणि ह्या 7 षटकातले 2 चेंडूवर सलग 2 चौकार प्रवीणच्या बॅटमधून. आता मात्र थोडीशी चिंता गुरुनाथ यंग डायनामाइट संघाच्या गोटात. सुरुवात प्रवीणची इतकी सुंदर, त्यानंतर थोडस आत्मविश्वास दुणावलो. यॉर्कर लाईनचो चेंडू मिड विकेटच्या कपडावरसून डायरेक्ट चंद्रार षटकारासाठी. तीन चेंडूंचा खेळ समाप्त, धावसंख्या 14 रन्सावर. 2 चेंडूवर 2 चौकार, तिसऱ्या चेंडूवर षटकार. पॉवर प्लेच्या षटकात खरपूस समाचार. 19 धावसंख्येचा टार्गेट. चौथो चेंडू घेऊन परत एकदा सर्वेश बॉलिंग मार्कवर प्रवीणसाठी. रिव्हर्स स्वीप खेळण्याचा होतो प्रयत्न, बॅट आणि बॉलचा काही संपर्क नाही. चेंडू रवलो मेडन. आतापर्यंत सरळ बॅटने खेळणाऱ्या प्रवीणचे 3ही चेंडू सीमारेषा पार झालेले, पण ह्या चेंडूवर थोडंसं वेगळं फटको खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू रवलो मेडन, धावसंख्या स्थिरावलेली 14 रन्सावर. चौथो चेंडू समाप्त, परत एकदा सर्वेश बॉलिंग मार्कवर. स्लोअर 1 चेंडू होतो, चेंज ऑफ पेस ज्याका म्हटली जाता. विकेट किपरने आपलं काम पूर्ण केला. पहिले 3 चेंडू महागडे टाकल्यानंतर आता मात्र सर्वेश योग्य दिशेवर, योग्य टप्प्यावर गोलंदाजी. सलग दुसरं चेंडू मेडन, धावसंख्या 14 रन्सावर थांबलेली. पहिला षटक प्रगतीपथावर. पहिल्या षटकाची समाप्ती करणारो शेवटचा चेंडू घेऊन सर्वेश बॉलिंग मार्कवर प्रवीणसाठी. शेवटच्या चेंडूवर दिलेलो सन्मान, निर्धाव चेंडूनिशी पहिल्या ओव्हरीचो खेळ झालो समाप्त. 19 रन्साचा टार्गेट चेस करताना धारेश्वरी एम्पॉवर्ड संघाची धावसंख्या पहिल्या ओव्हरीत बिनबाद 14 रन्सावर. नवीन गोलंदाज साईराज बॉलिंग मार्कवर असून पहिल्यांदा शिवम स्ट्रायकर यांच्या दिशेने पहिल्या 3 चेंडूवर 2 चौकार आणि 1 षटकार प्रवीणचे, पण शेवटचे 3ही चेंडू मेडन, निर्धाव सर्वेशचे. साईराज दुसऱ्या षटकातलं हे पहिलो चेंडू. पहिली 2 षटका कंपल्सरी पॉवर प्ले, यानंतर अजून 1 षटक असताना बॅट्समन चॉईस पॉवर प्ले. आणि पॉवर प्लेच्या 3ही ओव्हरमध्ये वैशिष्ट्य म्हणजे 3ही गोलंदाज वेगवेगळे बघूक मिळतले. पहिलं चेंडू खूपच सुंदर, हाय व्होल्टेज ड्रामा ज्याका म्हटलं जाता. प्रत्येक मेडन चेंडूवर प्रेक्षकांकडून भरपूर प्रतिसाद मिळताना सलग चौथो चेंडू रवलो मेडन. पहिल्या ओव्हरीतले शेवटचे 3 चेंडू, दुसऱ्या ओव्हरीतलो पहिलो चेंडू. सलग 4 चेंडूवर धावसंख्या स्थिरावली 14 रन्सावर. दुसऱ्या षटकातलो दुसरं चेंडू परत एकदा शिवमसाठी. पटको तर मोठो असा, गोलंदाजाच्या कपडावरसून आकांड्याच्या दिशेन परत एकदा षटकारासाठी. शिवमच्या बॅटमधून बाहेर पडलेलो पहिलो स्कोरिंग शॉट, आपल्या खात्याची बोनी करणारो शॉट. धावसंख्या 20 रन्सावर.
19 रन्साचा टार्गेट. परत एकदा साईराज. शिवमसाठी तिसरा चेंडू. खराब चेंडू, भरकटलेलो चेंडू, पंचांचो इशारा होईल वाईट चेंडूचो अवांतरच्या स्वरूपात. अजून एक धाव. 21 धाव संख्या. 21. साडे अकराची सरासरी राखणं, किमान सरासरी 11.5. 11.50 रिक्वायर्ड रन रेट. आणि त्या सरासरीचो पाठला करताना दुसऱ्या षटकातच धावसंख्या 21 रन्सावर. खूप सुंदर सुरुवात आतापर्यंत प्रवीण आणि शिवमची. खराब चेंडू, आखूड टप्प्याचो चेंडू, बघता बघता चेंडू आखाड्याच्या पहिलाडी षटकारासाठी. दुसरा षटकार शिवमच्या बॅटमधून. धावसंख्या 27 रन्सावर. एकोणऐंशी रन्साचा टार्गेट चेस करताना पहिल्या 3 चेंडूतच धावसंख्या 14 रन्सावर गेलेली. त्यानंतर 4 चेंडू मेडन. खूप वेळ शांत होतो मैदानावर शिवम, पण मैदानावर आता मात्र आग करता सलग 2 षटकार शिवमच्या बॅटमधून. धावसंख्या 27 रन्सावर. अजून एक फटको मिडविकेटच्या कपडावरसून आकांड्याच्या पहिलाडी. परत एकदा षटकार. तिसरो. हेलो हेलो चेक. हेलो चेक. हेलो चेक. हेलो 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 चेक. हेलो हेलो. सलग तिसरो षटकार साईराजच्या बॅटमधून. धावसंख्या तिरियेचो डबल गेम. 33 शिवमच्या बॅटमधून सलग तिसरो साईराजच्या बॉलिंग मार्कवरून. 33 धावसंख्या. 79 रन्साचा टार्गेट. 4 चेंडू समाप्त. खूपच महागड्या षटकाच्या दिशेने वाटचाल करताना साईराज. बऱ्याच कालावधीनंतर मेडन रवलेलो चेंडू. चेंडू निर्धाव. परत एकदा धावसंख्या 33 रन्सावर. पाच चेंडू समाप्त. ह्या षटकाची सांगता करणारा चेंडू. शिवम स्ट्रायकर यांच्या दिशेने. कॉलवर टप्प्याचा चेंडू लॉंगांच्या कपडावरसून. बघता बघता परत एकदा आकांड्याच्या दिशेने षटकारासाठी. शिवमच्या बॅटमधून बाहेर पडलेलो ह्या षटकातलो 4थो षटकार. 2 षटकांचा खेळ समाप्त. धावसंख्या 39. 39 फॉर नो लॉस. दोन षटकाच्या समाप्तीनंतर लगेचच बॅट्समन चॉईस पॉवर प्ले. परत एकदा फ्रेश गोलंदाज. संघाची धावसंख्या 39. 39. 2 ओव्हरींचा खेळ समाप्त. 39 धावसंख्या. 39. 79 रन्साचा टार्गेट. शेवटचे 30 चेंडू शिल्लक. 5 षटकांचा खेळ शिल्लक. 40 धाबांची गरज. सामना सुरुवात होताना जी रिक्वायर्ड रन रेट 11च्या जवळपास होता, ताच रन रेट आता मात्र हळूहळू 8च्या खाली. नवीन गोलंदाज सर्वेश बॉलिंग मार्कवर. पॅव्हलिन एंड कडून बॉलिंग मार्कवर तयार सर्वेश. स्ट्रायकरांच्या दिशेने प्रवीण. आतापर्यंत 2 चौकार आणि 1 षटकार प्रवीणच्या बॅटमधून. मिड विकेटच्या दिशेने चेंडूचा प्रवास. 1 धाव तर अगदी सहज मिळतली. फक्त एकेरी धावसंख्येवर समाधानानिशी धावसंख्या पोहोचली 40 रन्सावर.
खूपच सुंदर सुरुवात प्रवीण आणि शिवम ह्या खेळाडूंची. पहिल्या 3 चेंडूवरच प्रवीणने आपले इरादे स्पष्ट केलेले आणि त्यानंतर शिवम 4 षटकार शिवमच्या बॅटमधून. 40 धावसंख्या सर्वेश बॉलिंग मार्कवर. अजून एक खराब चेंडू, आखूड टप्प्याचा चेंडू फाईन लेगच्या कपडावरसून डायरेक्ट केळीत गडग्यावरसून षटकार. षटकार आपण बघितले शिवमच्या बॅटमधून आतापर्यंत. शाळेच्या समोरच चालू असलेली स्पर्धा, चालू असलेली हो सामनो आणि सगळ्यांका प्रश्न पडलो शिवमला मास्तरांनी 1 ते 5 आकडे शिकवलेले की नाही, की डायरेक्टच ज्याची आकडेवारी 6 पासून चालू झाली. 5 षटकार आतापर्यंत शिवमच्या बॅटमधून. 46 धावसंख्या 46. अजून एक षटकार येता की काय माटवाच्या दिशेन परत एक षटकार. डीजेचा गाणा सुद्धा खास ओम नमः शिवाय शिवम साठी. 6 षटकार शिवमच्या बॅटमधून. अजय सर वाटाक लागला टुर्नामेंट लाईट बॉलची असा की काय. यापूर्वीच्या षटकात 4 षटकार, त्याच्या पुढच्या 3 चेंडूवर 2 षटकार मारल्यानंतर परत एकदा कव्हर्सच्या कपडावरसून परत एकदा षटकार. गरज रवली. 7 षटकार आतापर्यंत शिवमच्या बॅटमधून. 7 षटकार 42 वैयक्तिक धावसंख्या शिवमची. एकूण धावसंख्या 58. अजून एक खराब चेंडू, परत एकदा केळीच्या दिशेन परत एकदा षटकार आणि या षटकारानिशी हाफ सेंचुरी पूर्ण शिवमची आजच्या दिवसातली. माफ करा 48. अजून 2 धावांची गरज आहे. आठ षटकार शिवम तुझे झाले. 48 वैयक्तिक तुझी धावसंख्या झाली. फक्त 2 धावांची गरज असा तुका या आजच्या दिवसातली पहिली हाफ सेंचुरी नोंद करण्यासाठी. 64 धावसंख्या. अजून एक फटको मोठो मिड विकेटच्या कपडावरसून परत एकदा षटकार. 9व्या षटकारांनिशी हाफ सेंचुरी शिवमची पूर्ण झाली. शिवम तुझ्या सलग 6 षटकारांनिशी, तुझ्या एकूण 8 षटकारांनिशी, तुझ्या 9 षटकारांनिशी, तुझ्या 54 धावांनिशी धावसंख्या स्थिरावली 70 रन्सावर. बघून वाटलेले फायटिंग टोटल असा एक मोठो सामनो बघूक मिळतलो. पहिली फलंदाजी करताना गुरुनाथ यंग डायनामाइट संघ सुद्धा खुश झालेलो 78 धावसंख्या बघून. पण मालवणीत एक म्हणा, यवाजलेला साधात तर दळीदार कित्या बादात. आग खाणं आणि इंगळ्या ओकणं म्हणजे काय असता, अशा प्रकारची फलंदाजी शिवमने दाखवली. 9 षटकार आणि सगळेच्या सगळे षटकार. सामन्याची फक्त औपचारिकता बाकी राहिली, फॉर्मॅलिटी ज्याका म्हटली जाता. एकतर्फी होत चाललेलो सामनो. 70 धावसंख्या बिनबाद 70. पहिल्या विकेटसाठी अब्दुल कदाचित ही सगळ्यात मोठी भागीदारी असू शकते संपूर्ण स्पर्धेतली. कारण निर्धारित
6-7 षटकांच्या सामन्यामध्ये पहिल्या विकेटसाठी एवढी मोठी पार्टनरशिप, खरोखरच कौतुक करू जा प्रवीण आणि शिवम ह्या दोन खेळाडूंचा तेवढा कमी. बादल शिवमाची बॅटिंग बघून बालाजी आणि राजदीप यांनी 500 रुपयाचा बक्षीस दिला शिवमाग. शिवम म्हणजे तुझ्यासाठी 1000 रुपयांचा बक्षीस. मगाशी जर अशोक सरांनी सांगितलेला खेळान कोणाचा पॉट भरला ह्या प्रश्नाचा उत्तर आज शिवमचा तर नक्कीच भरला. प्रवीणचा फटको डीप स्क्वेअर लेग आणि मिड विकेट दोन खेळाडूंच्या मधून. अजून एक चौकार प्रवीणच्या खात्यावर आणि धावसंख्या 74 रन्सावर. पहिल्या क्वालिफायरचा सामनो असा. पहिलो क्वालिफायर म्हणजे जो जिंकतलो तो फायनल मध्ये जातलो, जो हरतलो त्याका अजून एक संधी मिळतली. थोडक्यात बाबा गेलो पंढरपुरा, इलो तरी वडे, ना इलो तरी वडे असो सामनो असतलो दोन्ही संघांसाठी. जिंकलात तरी पुढे आणि हरलात तरी अजून एक संधी. पण दोन्ही संघांचा इरादा होतो ह्यो सामनो जिंकायचो आणि सगळ्यात आधी फायनल मध्ये जायचा. विश्रांती घेऊन फ्रेश होऊन आपण फायनल खेळायचो. या टार्गेटच्या दिशेने यशस्वी वाटचाल धारेश्वरी एम्पॉवर्ड संघाची. 74 धावा, फक्त 5 रन्सांची गरज, फक्त 5 धावांची गरज. जो सामनो 6 षटका किमान चलात असं वाटलेलो, 7व्या षटकापर्यंत जायत असं वाटलेलो, हे सामनो 4थ्या षटकातच पूर्णपणे झुकलो धारेश्वरी एम्पॉवर्ड संघाच्या दिशेने. दुसरा चेंडू समाप्त. ऋषभचा फुलटॉस चेंडू परत एकदा फाईन लेगच्या कपडावरसून. अजून एक षटकार प्रवीणच्या बॅटमधून आणि ह्या षटकारानिशी धारेश्वरी एम्पॉवर्ड संघ अगदी दिमाखात आजच्या सत्रातल्या पहिल्या सामन्यात मेगा फिनाले मध्ये प्रवेश करताना. अभिनंदन धारेश्वरी एम्पॉवर्ड, गुरुनाथ यंग डायनामाइट. पुढच्या सामन्यासाठी शुभेच्छा.